Hello students, welcome to the class and today we are going to see the topic that is linear differential equation जहां पे हम इसका स्टैंडर्ड फॉर्म देखेंगे, सॉल्यूशन देखेंगे और सॉल्व एग्जांपल। ये लेक्चर 3 है इसका। इसके पहले भी मैंने 2 लेक्चर्स बनाए हैं लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन के, उसमें मैंने डिफरेंट एग्जांपल लिए हैं और यहाँ पे मैंने जो एग्जांपल लिए हैं वो थोड़े से हाई लेवल के लिए हैं। सो लेट अस प्रोसीड। इट इज लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। द जनरल फॉर्म ऑफ द लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर इज dy by dx plus py equals to q, where this p and q are the constant or functions of x alone. अब functions of x का मतलब क्या होता है? This x is nothing but the independent variable. मतलब this p and q are the functions of independent variable and this y is called as the dependent variable and this is called as linear in y. Why it is linear in y? Because the dependent variable that is y and its derivative that is dy by dx both are coming in the first degree. Therefore it is called as linear in y. Now solution of 1 will be given by it is y into the integrating factor equals to integration of q which is the RHS part of the equation into integrating factor dx plus c. अब यहाँ पे integrating factor क्या होता है उसको हम देखते हैं. It is nothing but y into e to the power integration of p dx. तो IFE we used here as e to the power integration of p dx. Okay, equals to integration q e to the power integration of p dx plus c. So this solution we use to solve the equation number 1. We are having the one more form of this linear differential equation, that is what? Dx by dy plus px equals to q, where this p and q are the functions of it is what? Independent variable y, or maybe it is constant quantity, and this is called as linear in x because the dependent variable x is coming in the first degree and its derivative and dx by dy is also coming in the first degree. Therefore it is called as linear in x and its solution will be given by it is x into the integrating factor equals to integration it is q integrating factor dy plus c. It is e to the power integration of p dy. So solution can be written as x into e to the power integration of p dy equals to integration q e to the power integration of p dy plus c. एक चीज आपको यहाँ पे नोट करनी है, जो भी हम इंटीग्रेशन करते हैं वो विद रिस्पेक्ट टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल करते हैं। जैसे पहले इक्वेशन में हमारा x हमारा इंडिपेंडेंट वेरिएबल था तो यहाँ पर हमने x से इंटीग्रेट किया, और सेकंड इक्वेशन में हमारे पास y इंडिपेंडेंट वेरिएबल था इसलिए हमने यहाँ पे y से इंटीग्रेट किया। नाउ लेट अस प्रोसीड। एग्जांपल 1, x क्यूब माइनस x dy बाय dx माइनस 3x स्क्वायर माइनस 1 y इक्वल्स टू x टू द पावर 5 माइनस 2x क्यूब प्लस x। अब आप इसको ऑब्जर्व कीजिए ध्यान से, आपको चेक करना है यहाँ पे कि इसको हम लीनियर इन y से सॉल्व कर सकते हैं या फिर लीनियर इन x से। अब यहाँ पे आप ऑब्जर्व कीजिए y का डिग्री 1 आ रहा है और x का डिग्री 1 भी आ रहा है, 5 भी आ रहा है, 3 भी आ रहा है। तो y का डिग्री 1 है इसलिए हम इसको dy by dx वाले फॉर्म से सॉल्व करेंगे। तो उसके लिए हमको कोएफिशिएंट ऑफ dy by dx यूनिटी चाहिए, मतलब 1 चाहिए, इसलिए हम इसको डिवाइड कर देंगे x क्यूब माइनस x से। तो हमको इक्वेशन मिल जाएगा इट इज व्हाट? dy by dx माइनस दिस क्वांटिटी दैट इज 3x स्क्वायर माइनस 1 डिवाइडेड बाय इट इज व्हाट? x क्यूब माइनस x, और यहां भी हम RHS में x क्यूब माइनस x से उसको डिवाइड कर देते हैं। तो इसको आप अभी कंपेयर कर सकते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म से, दैट इज dy by dx प्लस py इक्वल्स टू q, जहां पर हमारा p है वो कोएफिशिएंट ऑफ y है, तो कोएफिशिएंट ऑफ y यहां पे इट इज व्हाट? माइनस 3x स्क्वायर माइनस 1 x cube minus x. So therefore we have written the p and the q. Q is the RHS part of the equation. Now we have to do the integration of the p. Because हमें यहाँ पे इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालना पड़ता है, उसका फॉर्मूला होता है e to the power integration of p dx. So we do the integration of p here. So integration of p dx equals to this quantity. अब यहाँ पे आप इसको ऑब्जर्व कीजिए इसका इंटीग्रेशन क्या होगा। अगर आप ऑब्जर्व करते हैं तो देखिए x क्यूब माइनस x, इसका डेरिवेटिव न्यूमरेटर में प्रेजेंट है। x क्यूब का डेरिवेटिव 3x स्क्वायर और x का 1, तो ऐसे टाइम में हम क्या करते हैं? सब्स्टिट्यूशन मेथड से भी इसको सॉल्व कर सकते हैं या एक डायरेक्टली फॉर्मूला है। सब्स्टिट्यूशन में आप क्या करोगे? x क्यूब माइनस x को आप t पुट अप कर दीजिए और उसके बाद सॉल्व कीजिए, या अदरवाइज आपको ये फॉर्मूला याद रखना है। फॉर्मूला कौन सा है? इट इज इंटीग्रेशन ऑफ f डैश ऑफ x अपॉन f ऑफ x dx। इसका मतलब क्या है? जो डिनोमिनेटर है उसका डेरिवेटिव न्यूमरेटर में अगर प्रेजेंट है देन दैट इंटीग्रेशन विल बी गिवन बाय log ऑफ डिनोमिनेटर, मतलब log ऑफ f ऑफ x प्लस c। अब आप यहां पे देख रहे हैं x क्यूब माइनस x का डेरिवेटिव ऊपर में प्रेजेंट है, इट इज व्हाट? 3x स्क्वायर माइनस 1, तो इसका इंटीग्रेशन कैसा होगा? log ऑफ x क्यूब माइनस x। Therefore we write minus log of x cube minus x here. Now after that we find out the integrating factor that is given by e to the power integration of p dx. इंटीग्रेशन ऑफ p dx आपने निकाला हुआ है,
माइनस लॉग एक्स क्यूब माइनस एक्स, उसको यहाँ पे हम पुटअप कर देंगे। अब हम यहाँ पे लॉगरिथमिक प्रॉपर्टी अप्लाई करते हैं। देखिए ये जो -1 है लॉग के पहले, इसको हम एक्स क्यूब माइनस एक्स के पावर में लिख सकते हैं बाय यूजिंग द लॉगरिथमिक प्रॉपर्टी। सो फर्दर वी राइट डाउन e to the power log of x cube minus x to the power -1. Now we know that this e log will get cancelled. हमें क्या मिलेगा? It is just x cube minus x to the power -1 and this can be further written as 1 upon x cube minus x. ये आ गया हमारा इंटीग्रेटिंग फैक्टर। अब हम सॉल्यूशन लिख देते हैं। सॉल्यूशन इज गिवन बाय इट इज व्हाट? डिपेंडेंट वेरिएबल इंटीग्रेटिंग फैक्टर इक्वल्स टू इट इज इंटीग्रेशन ऑफ RHS पार्ट ऑफ द इक्वेशन इनटू द इंटीग्रेटिंग फैक्टर dx प्लस c। हम इंटीग्रल को सिंप्लीफाई कर देते हैं। यहां से आप x कॉमन निकाल सकते हैं, डिनोमिनेटर में भी आप यहां से x कॉमन निकाल सकते हैं, यहां से x कॉमन निकलता है तो हमें क्या मिलेगा? देखिए ये क्वांटिटी आ जाएगी x इंटू एक्स टू द पावर 4 माइनस 2x स्क्वायर प्लस 1। यहां भी हमने x कॉमन निकाला और यहां भी हमने x कॉमन निकाल लिया है। देखिए अब x टू द पावर 4 माइनस 2x स्क्वायर प्लस 1, इसको हम क्या लिख सकते हैं? देखिए इट इज नथिंग बट द x स्क्वायर माइनस 1 होल स्क्वायर। आप इसका स्क्वायर करके देखिए, ये आ जाएगा x टू द पावर 4 माइनस 2 टाइम्स इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन, देन इट इज प्लस 1 स्क्वायर, दैट इज 1 हियर। अब यहाँ पे देखिए एक्स स्क्वायर माइनस 1 होल स्क्वायर ये कैंसिल हो जाएंगे यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस 1 एक्स स्क्वायर माइनस 1 से, और x भी कैंसिल हो रहा है तो हमको सिंप्लीफाइड फॉर्म मिल रहा है। इट इज जस्ट इंटीग्रेशन ऑफ 1 बाय x dx एंड इंटीग्रेशन ऑफ 1 बाय x कितना होता है? इट इज log x. ओके, इट इज सिंपल। सो वी गॉट द आंसर हियर। सो दिस इज योर कंप्लीट सॉल्यूशन। आप यहां भी स्टॉप कर सकते हैं, या अदरवाइज अगर हम प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं dy बाई dx का जिसमें y डिपेंडेंट है और x इंडिपेंडेंट, तो हम y को एक्सप्रेस करते हैं इन टर्म्स ऑफ x, तो इसलिए मैं इस इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर दूंगा विद रिस्पेक्ट टू एक्स क्यूब माइनस एक्स। तो मुझे क्या मिलेगा? y इक्वल्स टू इट इज व्हाट? एक्स क्यूब माइनस एक्स log x प्लस c, एंड दिस इज कॉल्ड एज द कंप्लीट सॉल्यूशन फॉर द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन। मैंने यहाँ पे एग्जाम्पल इसलिए कंसिडर किए हैं बिकॉज ऐसे इंटीग्रेशन मैंने पिछले एग्जाम्पल में नहीं लिए थे। मैं नंबर ऑफ एग्जाम्पल इसलिए ले रहा हूं ताकि आपको इंटीग्रेशन का कंसेप्ट पूरी तरह से क्लियर हो जाए कि हम किस तरह से अप्लाई करते हैं लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए। मूविंग फर्दर फॉर द नेक्स्ट एग्जाम्पल, एग्जाम्पल नंबर 2, सॉल्व x इंटू एक्स माइनस 1 dy बाई डी एक्स माइनस एक्स माइनस 2 इंटू वाई इक्वल्स टू एक्स क्यूब 2x माइनस 1। अब इसको आप ऑब्जर्व कीजिए, इसमें डिग्री x का 1 है या फिर y का, तो यहाँ पे x क्यूब दिख रहा है, मतलब x का डिग्री तो 1 नहीं है यहाँ पे, बट y का डिग्री 1 दिख रहा है, इसलिए हम इसको लीनियर इन y में कन्वर्ट करेंगे और उसको सॉल्व करेंगे। उसके लिए dy बाई डी का कोएफिशिएंट आपको पहले 1 करना पड़ेगा, तो x माइनस 1 से इसको आप डिवाइड करेंगे, तो गिवन इक्वेशन कैन बी रिटन एज dy बाई डी एक्स माइनस x माइनस 2 अपॉन x इंटू एक्स माइनस 1 इंटू वाई, एक्स स्क्वायर 2x माइनस 1 अपॉन इट इज x माइनस 1। ये क्लियर है? यहां पे एक x कैंसिल हो जाएगा, इसलिए हमने यहां पे x स्क्वायर लिखा। अब इसको आप स्टैंडर्ड फॉर्म से कंपेयर कीजिए, क्या है? dy बाई डी एक्स प्लस पी वाई इक्वल्स टू क्यू। सो p इज व्हाट? माइनस ऑफ x माइनस 2 x इंटू एक्स माइनस 1 जो y का कोएफिशिएंट है, एंड q इज द RHS पार्ट। अब हम इंटीग्रेशन करते हैं p का यहाँ पे। सो इंटीग्रेशन ऑफ p dx इक्वल्स टू माइनस इंटीग्रेशन ऑफ x माइनस 2 x इंटू एक्स माइनस 2 dx। अब ये माइनस साइड इनसाइड ले लो, इसको हम ऐसा भी लिख सकते हैं 2 माइनस एक्स अपॉन x इंटू एक्स माइनस 1। अब आप मुझे बताइए कि इसका इंटीग्रेशन हम कैसे करेंगे। इसका इंटीग्रेशन करने के लिए आपको इसको पार्शियल फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना पड़ेगा, और यहाँ पे इस फ्रैक्शन का पार्शियल फ्रैक्शन पॉसिबल है। क्यों? बिकॉज डिग्री ऑफ न्यूमरेटर कितना है? 1, बिकॉज x का पावर यहाँ पे 1 है, और डिग्री ऑफ डिनोमिनेटर x इंटू एक्स क्या हो गया? एक्स स्क्वायर, मतलब यहाँ पे 2 है। सो डिग्री ऑफ न्यूमरेटर इज स्ट्रिक्टली लेस देन द डिग्री ऑफ डिनोमिनेटर, हेंस पार्शियल फ्रैक्शन इज पॉसिबल। तो इस फ्रैक्शन को हम पार्शियल फ्रैक्शन में रिजॉल्व करते हैं और उसके बाद इंटीग्रेशन करेंगे, तो इसका पार्शियल फ्रैक्शन आएगा 1 अपॉन एक्स माइनस 1 माइनस 2 बाय एक्स। अब ये कैसे आया ये आपको मैं समझा देता हूं। इससे आप रफ में भी कर सकते हैं, जैसे मेरे पास फ्रैक्शन है 2 माइनस एक्स अपॉन एक्स इंटू एक्स माइनस 1। अब यहां पे देखिए जो डिनोमिनेटर है उसमें 2 लीनियर फैक्टर है, तो इसलिए हम इसको लिखेंगे a अपॉन एक्स एंड प्लस b अपॉन एक्स माइनस 1। ये क्लियर है? अब हमको a और b की वैल्यू यहाँ पे फाइंड आउट करनी पड़ेगी, तो इसके लिए मैं इसका क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर देता हूं, तो इसको मैं लिखता हूं a इंटू एक्स माइनस 1 प्लस b इंटू एक्स, इट इज अपॉन x इंटू एक्स माइनस 1। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे ये डिनोमिनेटर हमारे कैंसिल आउट हो जाएंगे, सिर्फ डिनोमिनेटर बचेगा, दैट इज 2 माइनस एक्स इक्वल्स टू a इंटू एक्स माइनस 1 प्लस b इंटू इट इज x। नाउ आफ्टर दैट अभी हम यहाँ से a और b का वैल्यू निकालेंगे। हमारे पास 2 लीनियर फैक्टर, एक है x और एक है x माइनस 1, तो हम दोनों को इक्वेट करेंगे, इट इज 0 से 1 बाय 1। तो पहले अगर मैंने पुटअप किया इट इज व्हाट? x इक्वल्स टू 0, तो मुझे ये इक्वेशन इंप्लाई करता है x अगर मैंने 0 पुटअप किया तो 2 इक्वल्स टू a, दिस इज 0 माइनस 1 एंड दिस इज b इंटू 0। ओके, तो ये तो क्वांटिटी 0 हो गई, a इंटू माइनस 1 मतलब माइनस से हो जाएगा,
तो 2 इक्वल्स टू माइनस ए, तो ए का वैल्यू आपका क्या, इट इज व्हाट, -2। अब वैसे हम यहाँ पे बी का वैल्यू निकालेंगे। बी के वैल्यू के लिए आप क्या करेंगे, अभी दूसरा जो लीनियर फैक्टर है कौन सा, x माइनस 1, इसको हम पुटअप करेंगे 0। तो x माइनस 1 अगर मैंने 0 पुटअप किया, मतलब मैं x का वैल्यू कितना पुटअप करने वाला हूं, 1। तो मैं यहाँ पे 1 पुटअप करता हूं x को, तो ये जाएगा 2 माइनस 1 इक्वल्स टू, यहाँ पे आपने x माइनस 1 को 0 पुटअप किया हुआ है, तो ये कंप्लीटली 0 हो जाएगा। यहाँ पे a इंटू 0 प्लस b इंटू एक्स का वैल्यू है 1, तो हमने यहाँ पे 1 पुटअप कर दिया। दिस इज 1 इक्वल्स टू दिस इज 0 प्लस b, तो मुझे b का वैल्यू आ गया, इट इज व्हाट, 1। तो b का वैल्यू 1, a का वैल्यू -2, इसको यहाँ पे आप सब्स्टिट्यूट कर देंगे तो आ जाएगा, इट इज व्हाट, -2 अपॉन x प्लस 1 अपॉन x माइनस 1। a और b के आपने वैल्यू डाल दी। दिस इज अवर रिक्वायर्ड पार्शियल फ्रैक्शन फॉर दिस गिवन फ्रैक्शन। आप यहाँ पे कंफर्म कर सकते हैं, देखिए हमें क्या मिला, इट इज -2 बाय एक्स विच इज हियर एंड 1 अपॉन x माइनस 1। इसको हमने इस तरीके से लिख दिया। अब देखिए अगर आप इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो आपको ये फ्रैक्शन मिलने वाला है। करके देख लेते, इट इज व्हाट, x माइनस 2 इंटू इट इज व्हाट, x वी आर हैविंग, देन -1 इंटू -2 प्लस 2 हो जाएगा अपॉन इट इज x इंटू x माइनस 1। तो देखिए यहाँ पे x माइनस 2x क्या हो जाएगा, इट इज -x प्लस 2। तो यहाँ पे देखो 2 माइनस x है ऑलरेडी, x इंटू x माइनस 1। मतलब जो हम पार्शियल फ्रैक्शन निकालते हैं, अगर वापस हम क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो आपको सेम फ्रैक्शन मिलता है। नाउ वी डू द इंटीग्रेशन। अब हम 1 अपॉन x माइनस 1 को इंटीग्रेट करेंगे। सो इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन x माइनस 1 इज व्हाट, log ऑफ x माइनस 1। क्यों, बिकॉज x माइनस 1 का डेरिवेटिव क्या होगा, x का 1 और 1 का 0। So derivative of x minus 1 is present in the numerator. Therefore, integration of this quantity is nothing but log of x minus 1. 2 is as it is और 1 by x का integration it is log of x. अब आप यहाँ पे लॉगरिथमिक प्रॉपर्टी अप्लाई करेंगे और log x के पहले जो 2 है ये हम x के पावर में लिख सकते हैं। तो इसको हम कैसे लिखेंगे, log of x minus 1 माइनस log x स्क्वायर। अब फिर से आप लॉगरिथमिक प्रॉपर्टी अप्लाई कीजिए, log a माइनस log b हम कैसे लिख सकते हैं, log of a by b दैट इज log of x माइनस 1 अपॉन इट इज x स्क्वायर। मैं यहाँ पर प्रॉपर्टी लिस्ट आउट कर देता हूं, आपको ये दो प्रॉपर्टी लॉगरिथम की याद ही रखनी है। इट इज a log b जो हमने पहले यूज की, दिस इज नथिंग बट log b टू द पावर a, और दूसरा प्रॉपर्टी हमने यूज किया log a माइनस log b इक्वल्स टू log of a by b। ये दो प्रॉपर्टी हम हमेशा ही यूज करते हैं। और एक प्रॉपर्टी और होती है, इट इज log a प्लस log b इट इज इक्वल टू व्हाट इज इट, log of a इंटू b। तो ये तीन प्रॉपर्टी का हम मैक्सिमम टाइम यूज करते हैं और लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन में ये यूज होती है, तो इसको आपको याद रखना है। नाउ दिस इज इंटीग्रेशन ऑफ p dx दैट इज log of x minus 1 upon it is x square. Now we find out the integrating factor and that is given by e to the power integration of p dx. इंटीग्रेशन ऑफ p dx हमने निकाला हुआ है, उसको यहाँ पे लिख देंगे और e log यहाँ पे कैंसिल होते हैं और हमें मिल जाएगा इंटीग्रेटिंग फैक्टर एज व्हाट इज इट, x minus 1 upon it is x square. Hence the solution is given by y equals to integrating factor equals to integration q integrating factor dx plus c. यहाँ पे अगर आप फॉर्मूला लिखना चाहते तो आप लिख भी सकते हैं या फिर डायरेक्टली भी आप सोल्यूशन लिख सकते हैं ऐसे, y into it is integrating factor x minus 1 upon x square equals to it is integration of RHS part of the equation that is q which is written here into it is integrating factor x minus 1 upon x square dx. अब यहाँ हम इंटीग्रल को सिंप्लीफाई कर देते हैं, x स्क्वायर कैंसिल हो गया, x माइनस 1 कैंसिल हो गया, सो वी आर लेफ्ट विथ ओनली 2x माइनस 1। सो इंटीग्रेशन बहुत ही सिंपल है इसका, x का इंटीग्रेशन हो जाएगा x स्क्वायर बाई 2, तो 2 कैंसिल हो जाएंगे और dx का इंटीग्रेशन हो जाएगा इट इज व्हाट, x। यहां से आप x कॉमन निकाल सकते हैं तो हो जाएगा x इंटू एक्स माइनस 1। अब देखिए ये इक्वेशन dy बाई dx में है तो हम y को रिप्रेजेंट करेंगे इन टर्म्स ऑफ x बिकॉज y इज डिपेंडेंट और x इज इंडिपेंडेंट। तो इसको मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा पूरे इक्वेशन को x स्क्वायर अपॉन x माइनस 1 से, सो दैट ये वाला जो है टर्म ये कैंसिल आउट हो जाएगा और मुझे मिलेगा y इक्वल्स टू x स्क्वायर अपॉन x माइनस 1 इंटू दिस क्वांटिटी। अब आप इसे मल्टीप्लाई कर दीजिए तो x माइनस 1 कैंसिल हो जाएगा, ये आ जाएगा x क्यूब प्लस देन cx स्क्वायर अपॉन x minus 1. So this is our complete solution for the given differential equation 2. Moving for the next example, example number 3. Solve 1 plus x square dy by dx plus xy equals to 1. अब यहाँ फिर से आप ऑब्जर्व कीजिए x का डिग्री कितना है 1 और यहाँ पे x का डिग्री कितना है 2. सो इसलिए हम इसको dx by dy के फॉर्म से सॉल्व नहीं कर सकते हैं बिकॉज x का डिग्री 2 आ रहा है और y का डिग्री 1 है, तो हम इसको dy by dx के फॉर्म से सॉल्व कर सकते हैं, दैट इज लीनियर इन y. सो dy by dx का कोएफिशिएंट हमें चाहिए यूनिटी, इसके लिए हम इसको 1 प्लस एक्स स्क्वायर से डिवाइड कर देते हैं बोथ द साइड। तो इसको हमने डिवाइड कर दिया 1 प्लस एक्स स्क्वायर से बोथ द साइड। नाउ दिस इक्वेशन इज लीनियर इन y बिकॉज y इज हैविंग द डिग्री 1 और dy by dx का भी डिग्री कितना है, इट इज व्हाट 1। देयरफॉर जो y का कोएफिशिएंट रहेगा दैट इज x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर
उसको हमें इंटीग्रेट करना पड़ेगा, और एक्सपोनेंशियल के पावर में हम लेते हैं तो हमको इंटीग्रेटिंग फैक्टर मिल जाता है। अगर आप डायरेक्टली कर सकते हो तो आप डायरेक्टली कीजिए, या अदरवाइज उससे स्टैंडर्ड फॉर्म से कंपेयर कीजिए, dy/dx प्लस py इक्वल्स टू q, जहां से आप p लिखिए, इट इज कोएफिशिएंट ऑफ y, इट इज x अपॉन 1 प्लस x स्क्वायर एंड q इज द RHS पार्ट। नाउ डू द इंटीग्रेशन ऑफ p, दैट इज इंटीग्रेशन ऑफ p dx इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ x अपॉन 1 प्लस x स्क्वायर dx। अब मुझे बताइए यहाँ पे इंटीग्रेशन क्या होगा। इफ यू ऑब्जर्व हियर 1 प्लस x स्क्वायर का डेरिवेटिव ऊपर में प्रेजेंट है, देखिए 1 का डेरिवेटिव कितना है, इट इज 0, और x स्क्वायर का होता है 2x, तो आप 2 यहाँ पे मल्टीप्लाई कर सकते हैं और 2 से डिवाइड कर सकते हैं, तो इसको मैं इस तरह से लिख सकता हूं 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ 2x अपॉन 1 प्लस x स्क्वायर। अब हम बोल सकते हैं कि डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव दैट इज 1 प्लस x स्क्वायर का डेरिवेटिव न्यूमरेटर में प्रेजेंट है, विच इज 2x। नाउ वी अप्लाई द फॉर्मूला एंड वी हैव द आंसर एज 1/2 log ऑफ डिनोमिनेटर दैट इज log ऑफ 1 प्लस x स्क्वायर। अब आप यहाँ पे लॉगरिथमिक प्रॉपर्टी अप्लाई कीजिए और ये 1/2 हम 1 प्लस एक्स स्क्वायर के पावर में लिख सकते हैं, एंड दैट इज नथिंग बट देन रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ऐसा भी लिखा जा सकता है। नाउ दिस इज द इंटीग्रेशन ऑफ पी dx, हमें चाहिए इंटीग्रेटिंग फैक्टर विच इज नथिंग बट e टू द पावर इंटीग्रेशन ऑफ पी dx, तो हमको इंटीग्रेशन ऑफ पी dx यहाँ पे लिख देना है, दैट इज log ऑफ अंडर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ई लॉग कैंसिल हो जाएगा और मुझे मिलेगा इट इज व्हाट, अंडर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर। दिस इज आवर इंटीग्रेटिंग फैक्टर। नाउ वी राइट डाउन द सॉल्यूशन एंड दैट इज गिवन बाय y into the integrating factor equals to integration of q integrating factor dx plus c। आपको फॉर्मूला लिखना है तो आप लिख सकते हैं, नहीं लिखा तो भी चलता है, डायरेक्टली भी आप ये लिख सकते हैं, y into the integrating factor we are having equals to integration of 1 upon 1 plus x square which is the RHS part of the equation, then into the integrating factor dx plus c। अब यहाँ पे आप ऑब्जर्व कीजिए, ये अंडर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर है और ये 1 प्लस एक्स स्क्वायर है, तो इसको मैं 1 प्लस एक्स स्क्वायर का ऐसा लिख सकता हूँ, अंडर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू अंडर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो एक अंडर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा और यहां मुझे मिलेगा अंडर रूट ऑफ इट इज व्हाट, 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब मुझे बताइए इंटीग्रेशन ऑफ अंडर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर क्या होता है, इसका एक स्टैंडर्ड इंटीग्रल फॉर्मूला है, वो आपको याद रखना पड़ेगा, एंड दैट इज साइन h इनवर्स ऑफ x। ये आपको याद रखना है, दैट इज इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर इज व्हाट, साइन h इनवर्स ऑफ x। अब आप इसको डिवाइड कर दीजिए अंडर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर से, तो आपको ये आंसर मिल जाएगा, दैट इज y इक्वल्स टू दिस क्वांटिटी, एंड दिस इज नथिंग बट आवर कंप्लीट सॉल्यूशन फॉर द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन। मैंने वीडियोस में नंबर ऑफ एग्जांपल लिए हुए लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन के, ताकि आपको मैं अच्छे से बता सकूं कि इंटीग्रेशन के फॉर्मूले हम कैसे अप्लाई करते हैं और किस तरह से हम इसका इंटीग्रेशन भी करते हैं। मैंने एक वीडियो बनाया हुआ है इंटीग्रेशन के फॉर्मूले के ऊपर, वो वीडियो आप देख सकते हैं, उसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है। नाउ प्रोसीड फॉर द लास्ट एग्जांपल, एग्जांपल नंबर 4, सॉल्व x प्लस tan y dy इक्वल्स टू sin 2y dx। अब इसको ऑब्जर्व कीजिए आप, यहाँ पे आपको tan y दिख रहा है और sin 2y दिख रहा है, y का डिग्री 1 हमको दिख नहीं रहा है यहाँ पे कहीं, बट x का डिग्री 1 दिख रहा है, इसलिए हम इसको लीनियर इन x से सॉल्व करेंगे, या अदरवाइज dx by dy से हम इसको सॉल्व करेंगे। तो इसको हम dx by dy में लिखते हैं, तो इसको dy यहाँ पे ला लेते हैं और sin 2y इसके नीचे मिला लेते हैं, तो इसको हम लिख सकते हैं इट इज व्हाट, dx by dy इक्वल्स टू x प्लस tan y अपॉन इट इज sin 2y। अब आप डिवाइड कर देंगे sin 2y से ये दोनों टर्म को, तो इसको हम लिख सकते हैं x अपॉन sin 2y प्लस tan y अपॉन sin 2y, और ये जो x का टर्म है इसको हम लेफ्ट में लेके जाते हैं, सो इक्वेशन विल बिकम dx by dy माइनस 1 अपॉन sin 2y x इक्वल्स टू इट इज 1 अपॉन 2 cos स्क्वायर y। अब देखिए RHS में हमारे पास क्या बचा था, tan y अपॉन sin 2y, एंड दैट इज नथिंग बट 1 अपॉन 2 cos स्क्वायर y। अब ये कैसे आया, आपको पता है कि tan y क्या होता है, बताइए, इट इज sin y अपॉन cos y, और sin 2y क्या होता है, इट इज 2 टाइम्स ऑफ sin y एंड cos y। वही हमने यहाँ पे लिखा, देखिए tan y हमने लिख दिया इट इज व्हाट, sin y बाय इट इज cos y एंड होल अपॉन इट इज sin 2y होता है 2 टाइम्स ऑफ sin y एंड इट इज cos y। तो यहाँ पे sin y तो कैंसिल हो गया, cos y इंटू cos y इट इज व्हाट, cos स्क्वायर y एंड 2 इज हियर। इसमें आप एक स्टेप और ऐड कर सकते थे जिसमें आप इसका सिंप्लीफिकेशन बता सकते थे, यहाँ पे मैंने डायरेक्ट लिखा हूं। नाउ दिस इक्वेशन इज लीनियर इन x, और आपको अभी x का जो कोएफिशिएंट है उसका इंटीग्रेशन करना है, तो अगर आपको डायरेक्टली अगर इंटीग्रेशन पता है तो आप लिख सकते हैं, या अदरवाइज आप इसको कंपेयर कीजिए स्टैंडर्ड फॉर्म से, dx by dy प्लस px इक्वल्स टू q, वहां से p और q निकालिए एंड देन डू द इंटीग्रेशन ऑफ p, एंड दैट इज व्हाट, इंटीग्रेशन ऑफ p dy, दैट इज इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन sin 2y dy, माइनस हमने यहाँ पे बाहर निकाल लिया है। अब 1 अपॉन sin 2y का कोई स्टैंडर्ड फॉर्मूला तो नहीं है, बट साइन रेसिप्रोकल होता है किसका, कोसेक y का, इसलिए 1 अपॉन sin 2y हम लिख सकते हैं, इट इज व्हाट, कोसेक ऑफ 2y। नाउ जस्ट डू द इंटीग्रेशन ऑफ कोसेक ऑफ 2y dy। यहाँ पे कोसेक 2y का एक फॉर्मूला होता है, वो आपको याद रखना पड़ेगा, कौन सा, इंटीग्रेशन ऑफ कोसेक y dy इज व्हाट, log ऑफ tan ऑफ y by 2।
अब यहाँ पे कोसेक 2y है, मतलब एंगल में 2y है, यहाँ पे एंगल में क्या है y, तो y को अगर मैं रिप्लेस करता हूँ 2y से, तो यहाँ भी y रिप्लेस होगा 2y से, तो 2 कैंसिल, तो हमारे पास आ जाएगा log ऑफ जस्ट tan y। इसीलिए हमने यहाँ पे इंटीग्रेशन ऑफ कोसेक 2y लिख दिया, इट इज व्हाट, log ऑफ tan y। अब यहाँ पे देखिए 1/2 भी आ रहा है, बिकॉज हम बाद में 2y का डेरिवेटिव करते हैं, जिसको हम डिनोमिनेटर में लिखते हैं, एंड माइनस साइन इज ऑलरेडी वी आर हैविंग, सो इट इज -1/2 log ऑफ tan y। दिस इज इंटीग्रेशन ऑफ p dy। हमें निकालना है इंटीग्रेटिंग फैक्टर। नाउ अप्लाई दैट इज व्हाट, लॉगरिथमिक प्रॉपर्टी। अब ये जो -1/2 है ये tan y के पावर में आएगा, तो इसको हम लिख सकते हैं log ऑफ tan y टू द पावर -1/2। दैट कैन बी फर्दर रिटन एज देन log ऑफ 1/√of tan y, बिकॉज ये tan y टू द पावर -12 अगर नीचे लेके जाएंगे तो 1/tan y टू द पावर हाफ होगा, एंड tan y टू द पावर हाफ मतलब क्या होता है, अंडर रूट ऑफ tan y। दिस इज द इंटीग्रेशन ऑफ p dy, और हमको निकालना है व्हाट, इंटीग्रेटिंग फैक्टर, एंड दैट इज गिवन बाय e टू द पावर इंटीग्रेशन ऑफ p dy। तो आप एक्सपोनेंशियल के पावर में इंटीग्रेशन ऑफ p dy यहाँ पे लिख देंगे, जिसमें e log कैंसिल हो जा रहा है, और हमें मिल रहा है इंटीग्रेटिंग फैक्टर एज व्हाट, 1/√of tan y। नाउ वी प्रोसीड फॉर द सॉल्यूशन, एंड सॉल्यूशन इज गिवन बाय, it is dependent variable into the integrating factor, integration the RHS part of the equation, that is 1/2 cos square y, integrating factor 1/√of tan y dy। अब आपको इस इंटीग्रल को इवैल्यूएट करना है, कैसे करेंगे सोचिए। देखिए 1/cos square y है, तो cos y का रेसिप्रोकल क्या होता है, इट इज व्हाट, sec y। तो इस क्वांटिटी को हम कैसे लिख सकते हैं, 1/cos square y को इट इज व्हाट, sec square y। और आपको पता है कि tan y का डेरिवेटिव होता है, इट इज व्हाट, sec square y। इसलिए हम यहाँ पे tan y को t पुट अप कर सकते हैं और प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे tan y को t लूंगा, देन इट्स डेरिवेटिव इज व्हाट, sec square y dy, और t का डेरिवेटिव इज व्हाट, dt। तो हम sec square y dy को रिप्लेस कर देंगे dt से, और tan y को रिप्लेस करते हैं t से, तो जाएगा 1/2 इंटीग्रेशन 1/√t dt प्लस c। अब इसका इंटीग्रेशन तो बहुत सिंपल है, रूट टी का। अगर आपको फॉर्मूला पता है डायरेक्टली तो इट इज गुड थिंग, अगर नहीं तो इसको हम इवैल्यूएट भी कर सकते हैं। रूट टी का मतलब होता है टी टू द पावर हाफ, इसको हम ऊपर लेके जाएंगे तो टी टू द पावर -12 हो जाएगा, एंड इंटीग्रेशन ऑफ टी टू द पावर -12 कैसा होगा, इट इज टी टू द पावर -12 + 1 अपॉन -12 + 1, बिकॉज हमारे पास फॉर्मूला कौन सा होता है, इट इज इंटीग्रेशन ऑफ x टू द पावर n, व्हाट इज इट, x टू द पावर n + 1 अपॉन n + 1। तो वही फॉर्मूला हमने यहाँ पे किया, -1/2 + 1 क्या होता है, 1/2, और नीचे में भी -1/2 + 1 क्या हो जाएगा, इट इज व्हाट, 1/2। यहाँ पे 1/2 कैंसिल हो जाएंगे, और मुझे मिलेगा इट इज व्हाट, टी टू द पावर हाफ, विच कैन बी रिटन एज इट इज व्हाट, √t + c। दिस इज नाउ t को हम रिप्लेस कर देते हैं, t हमारा क्या था, इट इज व्हाट, tan y। तो tan y से हमने रिप्लेस कर दिया, और एलएचएस पार्ट में हमारे पास है x × 1/√of tan y। अब यहाँ पे जो इक्वेशन है वो dx/dy है, जिसमें x डिपेंडेंट है और y इंडिपेंडेंट है, इसलिए हम x को रिप्रेजेंट करेंगे इन टर्म्स ऑफ y। इसलिए मैं इस इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर देता हूं √tan y से, तो मुझे मिलेगा इट इज व्हाट, x इक्वल्स टू इट इज √tan y इज व्हाट, इट इज tan y plus c into √tan y, and this is called as the complete solution for the given differential equation। मैंने यहाँ पे नंबर ऑफ एग्जाम्पल एंड वेराइटीज ऑफ एग्जाम्पल लिए हैं लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन में, मेरे 3 वीडियोस के अंदर। आप तीनों वीडियोस को जरूर देखिए, आपका लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा, और इंटीग्रेशन को हम कैसे सॉल्व करते हैं वो भी मैंने अच्छे से यहाँ पे समझाया हुआ है। नाउ सिमिलर एग्जाम्पल मैंने प्रैक्टिस के लिए दिए हैं यहाँ पे 1 2 3, और साथ में हिंट भी दी हुई है। इन एग्जाम्पल को आप सॉल्व कर सकते हैं, इन एग्जाम्पल का आप प्रैक्टिस कीजिए, बिकॉज प्रैक्टिस से कॉन्फिडेंस आता है। अगर आपको कोई भी दिक्कत होगी तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे लिख के बताइए, मैं उसको सॉल्व करने की पूरी कोशिश करूंगा। लास्टली आई से इट इज थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, and please like and share the video if you get something from it, and please do subscribe the channel मैथमेटिक्स गणित संग्रह। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, और अपने मैथ्स को एनहांस करते रहिए मैथमेटिक्स गणित संग्रह के साथ।